Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the Boolean algebra, logic gates and their realization. This topic is useful for BSc and class 12 students. This topic will also be found useful for various competitive exams like JEE Mains and NET. The complete note of this topic is provided here in this lecture. I hope you enjoy going through it. We now come to the topic. आइए हम थोड़ा बूलियन अलजबरा के बारे में जान लें। तो अलजबरा जो है वो हमारा दो तरीके का है, एक है ऑर्डिनरी अलजबरा, एक है बूलियन अलजबरा। ऑर्डिनरी अलजबरा में वेरिएबल्स जो हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, एंड दीज वेरिएबल्स कैन एज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बूलियन अलजबरा जो है इसमें वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एंड दे कैन एज्यूम ओनली टू वैल्यूज 0 and 1, आइदर दे आर 0 और 1। सो ये डिफरेंस है दोनों में। ऑर्डिनरी अलजबरा में वेरिएबल्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, वेयर एज इन बूलियन अलजबरा द वेरिएबल्स कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, either they are 0 or 1 and nothing in between, nothing outside this range. Fundamental Boolean relations, हमारे Boolean variables जो हैं वो हैं a plus 0 is equal to a into 0 is 0, a plus 1 is 1, a into 1 is a plus a is not 2a, this is simply a into a is a square and this is equal to a, because when a is either 0 or 1, a square is naturally equal to a, because if a is equal to 1, a square is 1 square is equal to 1, a is 0, then 0 square is 0, a plus a naught is 1, because if a is 0, then a naught is 1, a into a naught is 0. These are 8 fundamental Boolean relations. Next we come to the basic laws of Boolean algebra. The first is commutative law. It states that a plus b is equal to b plus a. So the order of addition is not important. Whether we add b to a or a to b, the result remains the same. Second relation is a into b is b into a. This means that the order of multiplication is not important. Whether we multiply a by b or b by a, they are both equal. The second law is associative law. A plus within bracket b plus c is equal to within bracket a plus b plus c. This means whether we first add b plus c and then add a to it, or whether we add first a plus b and then add c to it, the result remains the same. Similarly, a into within bracket b into c is equal to a into b into c. This means that whether we first multiply b and c and then multiply it with a, it is the same thing as multiplying first a and b and then multiplying this result with c. The third law is distributive law. This will look to you somewhat strange. This law is a plus b into c is a plus b into a plus c. So because it looks somewhat strange, we go to prove it. So how to prove it? Start from the right hand side. A plus b into a plus c. By ordinary multiplication, this gives you a square plus ac plus ba plus bc. So because a square is equal to a, we write here a plus ac plus ba plus bc.
In the first two terms, I take a common. So this is A into 1 plus C plus BA plus BC. We have already seen that 1 plus C is equal to 1. So this is A into 1 is A plus BA plus BC. Again, in the first two terms, we have a common. So A into 1 plus B plus BC, A 1 plus B is equal to 1. So this is A into 1 is A plus BC, and this is your left hand side. So this is your distributive law. So as we have seen, the logic gates are merely electronic switches that control the flow of information from input to output in the form of pulses. लॉजिक सिस्टम जो है वो दो तरह का हो सकता है. एक है हमारा पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, जिसमें दो वोल्टेज लेवल में जो ज़्यादा पॉजिटिव है उसको मानते हैं वन स्टेट, और दूसरे को मानते हैं जो कम पॉजिटिव है उसको मानते हैं जीरो स्टेट. दूसरा हमारा है निगेटिव लॉजिक सिस्टम, जिसमें दो वोल्टेज लेवल में जो ज़्यादा निगेटिव है उसको मानते हैं वन स्टेट, और जो कम निगेटिव है उसको मानते हैं जीरो स्टेट. तो हम लोग चर्चा करेंगे गेट्स की. पहले हम ये दिखाएंगे हाउ द गेट्स कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग स्विचेस. तो हम ये मान के चलेंगे कि जो क्लोज स्विच है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, ओपन स्विच है उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से. यदि बल्ब ग्लो कर रहा है वो रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है वो रिप्रेजेंट करेंगे 0 से. एंड और नॉट, ये हमारे 3 बेसिक गेट्स हैं. और गेट और नॉट गेट को मिला के जो गेट बनता है उसको हम बोलते हैं नॉट नॉर गेट. और एंड नॉट कंबाइंड गिव्स अस नॉर गेट. सिमिलरली and not, this combined gives us NAND gate. NOR gate और NAND gate को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स. ऐसा इसलिए कि सिर्फ NOR गेट को यूज़ करके या सिर्फ NAND गेट को यूज़ करके हम डिफरेंट गेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं. याद रखिएगा, एंड और एंड नॉट, दीज आर 3 बेसिक गेट्स. और गेट और नॉट गेट को कंबाइन करके जो मिलता है उसे हम कहते हैं नॉर गेट. एंड गेट को और नॉट गेट को कंबाइन करने से जो मिलता है उसे हम कहते हैं नैंड गेट. नॉर गेट और नैंड गेट ये दोनों हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं, क्योंकि सिंपली बाय यूजिंग ओनली नॉर गेट्स वी कैन डिज़ाइन ऑल अदर गेट्स. सिमिलरली simply by using only NAND gates we can design all other gates. We now come to the OR gate. OR gate में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा. ये ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डेफिनेशन. OR गेट आउटपुट 1 स्टेट में होगा यदि कोई भी इनपुट इसका 1 स्टेट में है. Output of an OR gate assumes the 1 state if any of its input is in the 1 state. मैथमेटिकली हम लिखते हैं इसको y equals a plus b plus c plus up to n. रीड कैसे करते हैं? y is the output, a b c up to n they are the inputs. इसको पढ़ते हैं a, जहाँ प्लस है उसको पढ़ते हैं और. y इक्वल्स a और b और c और n. सिंपल इसका यहाँ देखिए, सिंबल दिखा रहे हैं 2 इनपुट और गेट का. यदि इससे ज़्यादा इनपुट है तो यहाँ पर हम इसको ऐड भी कर सकते हैं. ऐड करने से क्या होगा? अगर 3 इनपुट है तो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस 1 2 3 A B C. y इक्वल्स A और B और C. ये हो गया 3 इनपुट एंड गेट. ये हुआ 2 इनपुट एंड गेट.
इसका ट्रुथ टेबल 2 इनपुट गेट का ऐसा है। 2 इनपुट्स हैं ए और बी, वाई हुआ ए और बी। ए और बी में से कोई इनपुट अगर 1 स्टेट में होगा आउटपुट 1 होगा। फर्स्ट रो में देखिए ए और बी दोनों 0 हैं, आउटपुट 0 है। सेकेंड रो में ए इज़ 1, बी इज़ 0, आउटपुट इज़ 1। थर्ड रो में ए इज़ 0 एंड इसमें थर्ड रो में ए इज़ 0, बी इज़ 1, आउटपुट इज़ 1 एंड द लास्ट रो both A and B are in the one state, so output is in the one state. अब देखिए इसमें और गेट को एज ए स्विच किस तरह रियलाइज करेंगे। तो देखिए ए और बी 2 स्विच हैं, ए और बी 2 स्विच हैं, दोनों स्विच जुड़े हुए हैं पैरेलल में। एक सेल लगा हुआ है, तीसरी सेल, एंड वी हैव ए बल्ब हियर, एक बल्ब है। यदि दोनों स्विच ओपन हैं मतलब दोनों स्विच 0 स्टेट में हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रुथ टेबल। यदि ए स्विच को हम क्लोज कर दें, ए स्विच को क्लोज कर दें, सो क्या हो जाएगा, ए स्विच क्लोज करने से ए स्विच बंद हो गया और बी स्विच हमारा खुला हुआ है। ए स्विच बंद हो गया और बी स्विच हमारा खुला हुआ है। तो देखिए ए स्विच ऐसे हो गया और बी स्विच ओपन है हमारा। तो यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ पर ये बल्ब है, ये आपका यहाँ पर सेल है। सो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग बिकॉज द करंट फ्लोज थ्रू दिस रूट, करंट फ्लोज थ्रू दिस रूट, सो द बल्ब विल ग्लो। This is A. A switch is closed, so bulb will glow. So this is conveyed by the second row of the truth table. यदि A की जगह B स्विच हमारा मान लीजिए कि B स्विच हमारा क्लोज है और A ओपन है, तो क्या होगा, फिर भी करंट फ्लो करेगा थ्रू द B स्विच एंड द बल्ब विल ग्लो। When both B and A switches are closed, the current will flow and the bulb will glow. इसलिए कोई भी स्विच अगर 1 स्टेट में है तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा। एंड दिस इज दिस ट्रुथ टेबल फॉर दी OR गेट। अब आइए इसको हम कैसे रियलाइज करेंगे, बाय डायोड्स एंड रजिस्टर। तो देखिए 2 डायोड हैं, एक डायोड में इनपुट ए है, दूसरे डायोड में इनपुट हमारा बी है। दोनों डायोड के कैथोड को क्या किया गया है, एक साथ टाई कर दिया गया है। यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं दोनों के कॉमन कैथोड जंक्शन से, y इक्वल टू ए और बी हियर। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यार, इसका दूसरा एंड जो है सो ग्राउंडेड है। जब ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो करंट विल फ्लो थ्रू अपर डायोड एंड इट पास थ्रू द रजिस्टर। रजिस्टर का ये सिरा जो है ये 0 वोल्टेज पर है, ये 0 वोल्ट पर है। इसलिए व्हेन ए डायोड कंडक्ट्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट इज़ रफली 0.2 वोल्ट। या डायोड जो कंडक्टिंग स्टेट में है तो ये काम बिहेव करता है एज ए शॉर्ट सर्किट। सो जो पोटेंशियल आप लगा रहे हैं ए पर वो पोटेंशियल आपको वाई पर मिलता है। सो यहाँ हाई पोटेंशियल है तो वाई विल बी हाई। यदि बी पर हाई पोटेंशियल लगाते हैं, बी पर लगाते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, एक करंट विल फ्लो थ्रू बी एंड द रजिस्टर एंड सो वाई विल अगेन बी हाई, क्योंकि बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मान बहुत ही कम है, ये 0.2 वोल्ट है। यदि बी पर लगाते हैं पोटेंशियल हम 5 वोल्ट का, वाई पर कितना होगा, इससे 0.2 वोल्ट कम, सो दिस विल बी नियरली 4.8 वोल्ट। सो दिस विल बी इन दी 1 स्टेट। यदि 3 इनपुट OR गेट है तो कैसे बनाएंगे उसको, तो यहाँ देखिए ए बी सी तीनों डायोड कैथोड जो हैं एक पॉइंट पर अटैच कर दिए गए हैं एंड y इज इक्वल टू ए और बी और सी। ऑपरेशन कैसा होगा उसका, उसी तरीके से होगा जैसा ऑपरेशन आपने इनपुट एंड गेट में देखा है। यहाँ पर जैसा ये हुआ ठीक उसी तरीके से इसका ऑपरेशन भी होगा।
अब देखिए रियलाइजेशन ऑफ टू इनपुट OR गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एंड रजिस्टर। दो इनपुट के लिए ये फिगर है और 3 इनपुट के लिए हमारा ये फिगर है। देखिए वी हैव टेकन 2 NPN ट्रांजिस्टर्स, दोनों के एमिटर एक साथ टाई अप हैं और दोनों के कैथोड जो हैं सो एक साथ टाई किए गए हैं। कॉमन कैथोड पर लगाया गया है पोटेंशियल प्लस VCC। एक के बेस पर इनपुट A है और दूसरे के बेस पर इनपुट हमारा B है। ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। सो व्हेन बेस इज पॉजिटिव with respect to the emitter, a current will flow through the transistor। और जब कोई ट्रांजिस्टर फुल्ली कंडक्टिंग स्टेज में है तो पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर इज नियरली 0.2 वोल्ट। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल जो है सो होता है रफली 0.2 वोल्ट व्हेन दिस इज कंडक्टिंग। तो यहाँ अगर लगा रहे हैं हम मान लीजिए 12 वोल्ट, तो यहाँ पर ड्रॉप है 0.2 वोल्ट का। यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा? यहाँ वोल्टेज मिलेगा हमको 11.8 वोल्ट। सो दिस इज इन दी वन स्टेट। सिमिलरली इफ़ यू अप्लाई ए पॉजिटिव पोटेंशियल एट द इनपुट B, अगर आप B पर लगाते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल तो दिस ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट एंड वी हैव ए पोटेंशियल हियर ऑफ 11.8 volt। तो whether when A conducts, A is high or B is high or both are high, the potential available at Y is 11.8 volt। तो ये करस्पॉन्ड करता है OR गेट के ट्रूथ टेबल। यदि 3 इनपुट OR गेट है तो कैसे कनेक्शन करेंगे? तीनों ट्रांजिस्टर के कैथोड को एक साथ और इनपुट को एक साथ कनेक्ट करते हैं और कॉमन एमिटर से हम उसका आउटपुट लेते हैं। ABC इनपुट हैं 3 और कॉमन कलेक्टर जो है वहाँ हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल VCC। ओके, तो जैसा एक्सप्लेनेशन 2 इनपुट OR गेट के लिए है यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर, वही एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी होगा जहाँ पर हमने यूज़ किया है 3 इनपुट OR गेट। So this is your 2 input OR gate and this is 3 input OR gate। This is your 2 input OR gate and this is 3 input OR gate। ये हुआ OR गेट का रियलाइजेशन यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एंड रजिस्टर। AND गेट में क्या है? AND गेट में 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग डिफिनीशन। AND गेट का आउटपुट 1 स्टेट में होगा यदि सारे इनपुट इसके 1 स्टेट में हैं। When all the inputs of the AND gate are in the 1 state, the output will be in the 1 state। मैथमेटिकली इसको हम लिखते कैसे हैं? Y इक्वल टू A डॉट P डॉट C अप टू N। रीड करते हैं कैसे इसको? Y इक्वल्स A एंड B एंड C एंड N। 2 इनपुट AND गेट का सिंबल यहाँ आप दिखा रहे हैं। यह है 2 इनपुट AND गेट। A और B इनपुट हैं, Y हमारा आउटपुट है एंड Y इक्वल टू A इंटू B। अगर 3 इनपुट होगा तो उसका सिंबल कैसे होगा? उसका सिंबल ऐसे होगा। यहाँ पर 2 इनपुट हैं, यहाँ पर 3 इनपुट लग जाएंगे। सो दिस विल बी A B C एंड दिस इज Y इक्वल टू A एंड B एंड C। टू इनपुट AND गेट का कैसे होगा ट्रूथ टेबल? ये देखिए, 2 वेरिएबल्स हैं A और B एंड आउटपुट इज 1 Y इक्वल टू A एंड B।
इसका डेफिनेशन क्या है? जब सारे इनपुट वन स्टेट में होंगे तो आउटपुट इसका 1 होगा। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में दोनों इनपुट आपके 0 स्टेट में हैं, सो आउटपुट विल बी 0। सेकेंड रो में A 1 है, B 0 है, तो आउटपुट विल बी 0। थर्ड रो में A is 0 and B is 1, so again output will be 0. Only in the last row both A and B are in the one state, so output will be in the one state. ओके, जब सारे इनपुट इसके वन स्टेट में होंगे उसी समय सिर्फ इसका आउटपुट 1 होगा, नहीं तो आउटपुट इसका 0 होगा। एंड गेट तो स्विच की तरह देखिए, ए और बी दो स्विच हैं, सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है और एक शेल है। जब तक दोनों स्विच ए और बी क्लोज नहीं होंगे तब तक इससे होकर के करंट कोई फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज स्विच इज ओपन। एक ओपन हो या बी ओपन हो या दोनों ओपन हो, कोई भी स्विच ओपन होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब दोनों स्विच क्लोज होंगे, ए और बी दोनों क्लोज होंगे, then only the current will flow and the bulb will glow. So this is given by the fourth row of the truth table. अब देखिए इसको रियलाइज कैसे करते हैं, यूजिंग डायोड्स एंड रजिस्टर। लेफ्ट साइड में फिगर है 2 इनपुट एंड गेट का, राइट साइड में फिगर है 3 इनपुट एंड गेट का। मार्क कीजिए और गेट की तुलना में यहाँ डायोड का जो पोजीशन है उसको उलट दिया गया है और दोनों के एनोड्स जो हैं वो एक पॉइंट पर टाई किए गए हैं। आउटपुट हम यहीं से लेते हैं, y = a एंड b। ये रजिस्टर है, उसके दूसरे एंड पर हम लगा रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। जब a 0 होगा तो करंट फ्लो करेगा। When A is 0, the current will flow. When B is 0, the current will flow. करंट फ्लो करेगा तो देखिए यहाँ जो है ये अगर वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट का है, इफ दिस वोल्टेज इज़ 5 वोल्ट, मान लीजिए ये 5 वोल्ट का है, तो सारा पोटेंशियल इसके क्रॉस ड्रॉप होगा और यहाँ कितना मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा हमको नियरली 0 volt. So when either A or B or both A and B are in the 0 state, output will be in the 0 state. जब A और B दोनों हाई होंगे मतलब पॉजिटिव हाई, और इसका एनोड भी हाई वोल्टेज पर है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, न तो अपर डायोड से न लोअर डायोड से, और इसलिए जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यदि यहाँ हमने अप्लाई किया 5 वोल्ट तो आउटपुट को कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। दैट मीन्स इट इज इन दी वन स्टेट। सो व्हेन बोथ A and B आर इन दी वन स्टेट, आउटपुट विल बी इन दी वन स्टेट, एंड दिस इज गिवन बाय दी लास्ट रो ऑफ दी ट्रूथ टेबल। This is Y, this is R, right। जो यहाँ पर है 2 इनपुट के लिए, 3 इनपुट के लिए आपको दिखा रहे हैं हम राइट साइड में। सो दिस इज हाउ टू एंड गेट रियलाइज्ड यूजिंग डायोड्स एंड रजिस्टर। अब देखिए अगर हमको रियलाइज़ करना हो यूजिंग ट्रांजिस्टर्स तो कैसे करेंगे? लेफ़्ट साइड में दिखा रहे हैं 2 इनपुट एंड गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर। राइट साइड में दिखा रहे हैं हम, राइट साइड में 3 इनपुट एंड गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एंड रजिस्टर। आउटपुट ले रहे हैं, तीनों को जोड़ा गया है सीरीज़ में। दोनों जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक का कलेक्टर दूसरे के मीटर से, और जो अपर ट्रांजिस्टर है वहाँ पर लगा गया है पोटेंशियल VCC। जब तक दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा,
और इसलिए इस रेजिस्टर से होकर के कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस कुछ नहीं होगा, और जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 0। सो व्हेन A and B, आइदर A और B or both are in the zero state, output will be in the zero state because no current will flow through the transistors. जब दोनों A और B हाई हैं, हाई पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। बोथ दिस ट्रांजिस्टर एंड दिस ट्रांजिस्टर आर NPN ट्रांजिस्टर्स, सो बेस मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द ट्रांजिस्टर टू कंडक्ट। तो जब कंडक्ट करेगा ट्रांजिस्टर, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इज रफली 0.2 वोल्ट। Similarly, across this transistor between the collector and the emitter, the drop is 0.2 volt. So current will flow through the transistors, and we have a potential drop across the resistor. तो यहाँ पर अगर 12 वोल्ट लगाया गया है और 0.4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, अपर ट्रांजिस्टर में 0.2 वोल्ट, लोअर में 0.2 वोल्ट, पूरा ड्रॉप कितना हो गया, 0.4 वोल्ट। 12 वोल्ट यहाँ लगाया गया है और 0.4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमको 11.6 वोल्ट। व्हाट यू गेट हियर, 11.6 वोल्ट, दैट इज इन दी वन स्टेप। इसलिए जब दोनों A और B इनपुट हाई स्टेट में हैं, देन ओनली द आउटपुट विल बी इन दी वन स्टेट। जब A और B दोनों में से कोई भी जीरो स्टेट में है, तो द ट्रांजिस्टर विल नॉट कंडक्ट, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर एंड Y विल बी इन द जीरो स्टेट। लेफ्ट साइड में ये 2 इनपुट के लिए दिखाया गया है, राइट साइड में वो 3 इनपुट के लिए दिखाया गया है। ओके, नॉटी गेट ऐसा है जिसमें सिर्फ एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और इसको सिर्फ ट्रांजिस्टर से ही बनाया जा सकता है, नॉट बाय यूजिंग ए डायोड। नॉट नाम से स्पष्ट है कि जो इनपुट देंगे उसका उल्टा मिलेगा आउटपुट में। सो ए नॉट गेट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट, एंड इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? The output of a NOT gate assumes the one state if its input is not in the one state. आउटपुट 1 होगा यदि इनपुट इसका 1 नहीं हो, एंड वाइस वर्सा। मतलब इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट अगर 1 है आउटपुट इसका 0 होगा। इनपुट का उल्टा इसका आउटपुट होगा, एंड हेंस द नेम नॉट गेट। मैथमेटिकली लिखते हैं y इक्वल्स a बार, इट इज रेड एज y इक्वल्स नॉट a। ये सिंबल दिखा रहे हैं नॉट गेट का, इनपुट a है, y आउटपुट है, तो y इक्वल टू a बार। इसका ट्रूथ टेबल देखिए, एक ही इनपुट है, कितने वैल्यू हो सकते हैं? एक ये 2, आइदर 0 और 1। सो व्हेन a इज 0 आउटपुट इज 1, व्हेन a इज 1 आउटपुट इज 0। नॉट गेट एज ए स्विच देखिए कैसे काम करेगा। ये बल्ब और ये स्विच दोनों पैरेलल में हैं, और उसके पैरेलल में लगा गया है सेल। जब A ओपन है, स्विच A ओपन है, मतलब A जीरो स्टेट में है, A जीरो स्टेट में है, तो सारा करंट जो है उसको कहाँ से फ्लो करेगा? थ्रू दी बल्ब, ऐसे फ्लो करेगा। सो बल्ब विल ग्लो। सो व्हेन A इज 0 आउटपुट इज 1। जब A को क्लोज कर देते हैं आप, व्हेन यू क्लोज A को क्लोज करने मतलब A ऐसे हो गया, यहाँ आपका बल्ब था पहले और यहाँ आपका सेल है। ऐसी स्थिति में करंट जो है, सारा करंट जो है फ्लो करेगा कहाँ से? ऐसे करंट फ्लो करेगा, और इधर से होकर कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। स्विच क्लोज है
तो करंट लिए आसान है इससे होकर ही फ्लो करने की, इसलिए कोई करंट जो है सो बल्ब से होकर फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा. सो व्हेन A is in the one state, output is in the zero state. This corresponds to the truth table of a NOT gate. इसको सिर्फ बना सकते हैं ट्रांजिस्टर से, नॉट बाई डायोड. कैसे बनाते हैं देखिए. ट्रांजिस्टर है, एमीटर ग्राउंडेड है, बेस पर A इनपुट है, कलेक्टर पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और वहाँ पोटेंशियल लगा है VCC. जब A पर देंगे पॉजिटिव पोटेंशियल, सो दैट ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स, द इंटायर पोटेंशियल ड्रॉप्स across the resistance R and Y becomes 0. जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है तो R से करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो होने से आपको पहले बता चुके हैं द पोटेंशियल हियर इज रफली 0.2 वोल्ट. और ये अगर 12 वोल्ट का है और यहाँ पर 0.2 वोल्ट है, यहाँ 0.2 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट का है, तो बाकी जो पोटेंशियल हुआ कितना ड्रॉप, ये तो आपका 0 पर है. दिस इज एट 0 वोल्ट, दिस इज एट 0 वोल्ट. ये डिफरेंस 0.2 वोल्ट का है, मतलब ये कितना हो गया, ये पोटेंशियल हो गया 0.2 वोल्ट, मतलब दिस इज नियरली 0. हाई पॉजिटिव पोटेंशियल ए पर है, मतलब ए वन स्टेट में है, आउटपुट आपका 0.2 वोल्ट है, मतलब ये 0 स्टेट में है. सो व्हेन ए इज इन दी वन स्टेट, आउटपुट इज इन दी 0 स्टेट. एंड व्हेन ए इज इन 0 स्टेट, मतलब ए नेगेटिव अगर है, इनपुट हमारा नेगेटिव है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए कोई पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस नहीं होगा. नो करंट विल फ्लो टू द रेजिस्टर आर एंड हेंस देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस आर. सो वाई विल बी इन दी हाई स्टेट और पोटेंशियल एट वाई विल बी इक्वल टू VCC, दैट इज 12 वोल्ट. सो व्हेन ए इज 0, Y is 1, when A is 1, Y is 0, and this corresponds to the truth table of a NOT gate. This is how we realize a NOT gate. Okay? NOR gate जो है वो कॉम्बिनेशन है OR gate और NOT gate का. यदि OR गेट के आउटपुट को हम इन्वर्ट कर दें, वी गेट द आउटपुट ऑफ ए NOR गेट. ए NOR गेट हैज़ 2 और मोर देन 2 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट. इसमें 2 इनपुट हैं और सिर्फ एक ही आउटपुट है, एंड इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डेफिनेशन. द आउटपुट ऑफ ए NOR गेट एज्यूम्स द वन स्टेट, ऑल द इनपुट्स आर इन द 0 स्टेट. सारे इनपुट 0 स्टेट में होंगे तो इसका आउटपुट 1 स्टेट में होगा. मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू नॉट ऑफ A और B और C और अप टू n. तो जैसा कि हमने देखा, NOR गेट जो है OR गेट और NOT गेट का कॉम्बिनेशन है. यदि OR गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर दें तो वी गेट ए NOR गेट. तो देखिए ये सिंबल है आपका OR गेट का. OR गेट का आउटपुट हुआ A और B, आगे हमने लगा दिया एक NOT गेट. सो दिस इज नाउ इन्वर्टेड. इसको सिंबल में लिखते हैं ऐसे, OR गेट की आउटपुट में एक बबल लगा दिया गया है. सो दिस रिप्रेजेंट्स योर NOR गेट. सो आउटपुट Y इक्वल टू नॉट ऑफ A और B. सो दिस इज द सिंबल ऑफ ए NOR गेट. नेक्स्ट वी कम टू द ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट NOR गेट. 2 इनपुट हैं A एंड B. OR गेट क्या होगा, A और B. NOT गेट क्या होगा, OR गेट का NOT, दैट इज NOT गेट. आउटपुट क्या होगा, A और B का NOT. तो A और B 2 इनपुट्स हैं, तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं. 0 0, 1 0, 0 1 एंड 1 1. OR गेट का आउटपुट क्या होगा, दोनों इनपुट 0 हैं, दिस इज 0. एक इनपुट 1 है तो 1, एक इनपुट 1 है तो 1, और दोनों इनपुट 1 हैं, आउटपुट इसका 1 होगा OR गेट के लिए. नॉट में क्या होगा, उसका नॉट कर देंगे तो इसका उल्टा होगा.
तो जहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया, और जहाँ 1 है वहाँ ये 0 हो गया। तो नॉर गेट जो है वो कॉम्बिनेशन है और गेट और नॉट गेट का। और गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा नॉर गेट। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ ए 2 इनपुट नॉर गेट। कैसे रियलाइज करेंगे इसको, ये देखते हैं। ए और बी दो स्विच हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं, दे आर इन पैरेलल। इसके पैरेलल बल्ब है और इनके क्रॉस में एक शेल लगा हुआ है हमारा। जब दोनों स्विच ओपन हैं, ए और बी दोनों स्विच ओपन हैं, तो करंट विल फ्लो वाया दी बल्ब एंड दी बल्ब विल ग्लो। तो दोनों इनपुट जीरो स्टेट में है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, आउटपुट हमारा 1 है। यदि कोई इनपुट को 1 कर दें, ए को क्लोज कर दें या बी को क्लोज कर दें, तो करंट विल फ्लो थ्रू द स्विच ए और बी। जो स्विच क्लोज होगा उधर से करंट फ्लो करेगा, और बल्ब से होकर करंट फ्लो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि द करंट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो जब करंट बल्ब से फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जब कोई भी इनपुट हमारा 1 स्टेट में है तो हमारा आउटपुट 0 स्टेट में होगा। दिस इज योर नॉर गेट विथ स्विचेस। इसको कैसे रियलाइज करेंगे हम, यूजिंग डायोड्स एंड रेजिस्टर्स। ये देखते हैं। देखिए ये आपका और गेट है, ये हम पहले देख चुके हैं हाउ इट ऑपरेट्स। दिस इज योर और गेट। और गेट का आउटपुट यहाँ है ए और बी। यहाँ में लगा दिया है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के आउटपुट ले रहे हैं हम उसके कलेक्टर से। जैसा हम देख चुके हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो इन्वर्ट करने का काम करता है। यदि हम आउटपुट उसके कलेक्टर से लें, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर है, और आउटपुट हम इसके कलेक्टर से लें तो ये काम करता है एज एन इन्वर्टर। तो दिस इज योर इनपुट टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज ए और बी, और यहाँ हम ले रहे हैं आउटपुट। तो आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए और बी नॉट ऑफ ए और बी। So this is OR gate and this is a NOT gate, and they combine together to give you a NOR gate. यदि हमारे पास इसको रियलाइज करने के लिए सिर्फ ट्रांजिस्टर हो तो कैसे करेंगे। देखिए दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 और Q2, दोनों के एमीटर एक साथ कनेक्टेड हैं और दोनों के कलेक्टर भी एक साथ कनेक्टेड हैं। एक के इनपुट पर बेस पर हमारा इनपुट ए है, दूसरे के बेस पर इनपुट हमारा बी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जो है सो सिर्फ और गेट का है। यदि हम इसके एमीटर पर रेजिस्टेंस लगाते तो एमीटर से लेते आउटपुट, तो ये देता हमको आउटपुट ऑफ ए 2 इनपुट और गेट। जैसा कि हम देख चुके हैं, ट्रांजिस्टर यदि कलेक्टर से हम आउटपुट लें तो वो काम करता है एज ए नॉट गेट। तो दिस इज बेसिकली योर और गेट। आउटपुट हम ले रहे हैं उसके कलेक्टर से। सो दिस इज ए और बी का नॉट, सो दिस इज नॉट ऑफ ए और बी, सो दिस इज ए नॉर गेट। दिस इज 2 इनपुट और गेट, and because we are taking the output from the collector of a transistor, so this is being inverted. So output of the OR gate is inverted, and we have the realization of a 2 input NOR gate. अब आते हैं NAND गेट पर। NAND गेट कॉम्बिनेशन है AND गेट और NOT गेट का। यदि AND गेट के आउटपुट को इन्वर्ट कर दें तो हमें मिलता है NAND गेट का आउटपुट। NAND गेट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। आउटपुट ऑफ ए NAND गेट assumes the 0 state if all its inputs are in the 1 state. यदि सारे इनपुट NAND गेट के 1 स्टेट में हो तो आउटपुट हमारा 0 स्टेट में होगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ए NAND गेट। सो NAND गेट इज द contraction of NOT AND,
A NAND function can be obtained simply by inverting the output of an AND gate. मैथमेटिक क्या लिखते हैं? Y is the output equal to not of A and B and C and up to N, where A, B, C up to N are the inputs. कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको? एंड गेट की आउटपुट को हम इन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट. दो इनपुट हैं ए और बी, आउटपुट मिल रहा है ए एंड बी. इस आउटपुट को हम दे रहे हैं नॉट गेट के इनपुट में. सो व्हाट वी गेट? ए एंड बी नॉट. इसका सिंबल कैसा है? एंड गेट के आउटपुट में एक देते हैं बबल. ये रिप्लाइज करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नैंड गेट को. सो दिस इज द सिंबल ऑफ ए टू इनपुट नैंड गेट. यदि इनपुट ज़्यादा हैं तो हम यहीं पर ए बी सी यहाँ और हम इनपुट को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू द ट्रूथ टेबल ऑफ टू इनपुट नैंड गेट. दो इनपुट हैं, दो इनपुट्स को हम चार तरीके से अरेंज कर सकते हैं. A and B both are 0. A is 1, B is 0. A is 0, B is 1. Both A and B are 1. तो AND गेट कितना होगा? In the first case, this is 0. In the second case, this is 0. In the third case, this is 0. And the fourth case, this is 1. इसलिए NAND गेट जो AND गेट का उल्टा होगा, वो क्या होगा? जहाँ 0 था वहाँ 1 होगा और जहाँ 1 था वहाँ 0 होगा. तो जब सारे इनपुट हमारे वन स्टेट में हैं तो आउटपुट हमारा इसका 0 होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए नैंड गेट. देखते हैं एज ए स्विच कैसे इसको हम रियलाइज करेंगे. तो देखिए ए और बी दो स्विच हैं जो सीरीज में हैं. इसके पैरेलल एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ एक आपका शेल है. जब ए और बी दोनों स्विच ओपन हैं या कोई भी एक स्विच ओपन है तो करंट इस रास्ते से फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज दिस स्विच इज ओपन एंड बोथ दिस स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. ऐसी स्थिति में करंट कहाँ से फ्लो करेगा? द करंट विल फ्लो थ्रू द बल्ब एंड द बल्ब विल ग्लो. इसलिए जब कोई भी स्विच जीरो स्टेट में है तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा. So this is represented by the first three rows of the truth table of NAND gate. जब दोनों स्विच क्लोज हैं तो सारा करंट जो है वो फ्लो करेगा थ्रू दी स्विचेस ए एंड बी एंड नो करंट विल फ्लो थ्रू दी बल्ब बिकॉज द करंट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब दोनों स्विच वन स्टेट में हैं. So this is your fourth row of the truth table. अब देखते हैं कि how the NAND gate can be realized using diodes and transistors. देखिए ये हमारा जो है ये हमारा टू इनपुट AND गेट है. ये हम पहले भी देख चुके हैं how it operates. और इस AND गेट का आउटपुट को हम दे रहे हैं कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के बेस पर एंड वी टेक द आउटपुट फ्रॉम द कलेक्टर. तो जैसा कि हम देख चुके हैं पहले भी, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से यदि आउटपुट लेते हैं तो ये इनपुट हमारा इन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज योर AND गेट एंड दिस इज बीइंग यूज्ड एज ए NOT गेट. सो दिस इन्वर्ट्स the input applied to its base. So output क्या मिलता है? Not of A and B. So this is your this combination, whole combination is your NAND gate. This is and this AND is being inverted by this transistor. So we have a NAND gate. अब देखते हैं how this can be realized using only transistors and resistor. तो देखिए A Q1 और Q2 दो ट्रांजिस्टर हैं जो दो सीरीज में जुड़े हुए हैं.
जब तक दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेंगे, दोनों के बेस पर पॉजिटिव पोटेंशियल जब तक नहीं होगा, जब तक ए और बी वन स्टेट में नहीं होंगे, तब तक Q1 और Q2 कंडक्ट नहीं करेंगे। जब कंडक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा रेजिस्टेंस से, सो देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप हियर एंड देयरफॉर Y will be equal to 1. So when both A and B are in the zero state, जीरो स्टेट का मतलब हो गया नेगेटिव वोल्टेज या जीरो वोल्टेज। यहाँ देखिए एमीटर जो है सो जीरो पर लगा हुआ है, एंड दिस इज एन NPN ट्रांजिस्टर, सो बेस मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द ट्रांजिस्टर्स टू कंडक्ट। जब तक ए और बी पॉजिटिव नहीं है, दोनों वन स्टेट में नहीं है, तब तक कंडक्शन संभव नहीं है। और जब कंडक्ट नहीं करेगा तब इससे होके कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और आउटपुट में क्या मिलेगा पोटेंशियल, वही जो हमारा VCC है। सो व्हेन बोथ A and B आर इन जीरो स्टेट, आउटपुट विल बी इन दी वन स्टेट। कोई भी इनपुट वन स्टेट में अगर है और दूसरा जीरो स्टेट में है, या ऐसे कहें कि दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट यदि जीरो स्टेट में है, तो ट्रांजिस्टर का कंडक्शन संभव नहीं है, एंड देयरफॉर देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप across this resistance here, and output will be equal to VCC, that will be in the one state. जब दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है या दोनों इनपुट हमारे वन स्टेट में हैं, तो कंडक्शन संभव है, ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट एंड देयर विल बी ए पोटेंशियल ड्रॉप across this resistance and output will be in the zero state. This is how we realize NAND gate using transistors and resistor. अब हम देखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज हम करेंगे XOR और XNOR गेट को डिजाइन करने में। तो फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट नॉट ऑफ A और B, A और B का नॉट इज A नॉट एंड B नॉट। ध्यान दीजिए, A और B का ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये हो गया आपका नॉट। A और B का नॉट इज A नॉट एंड B नॉट। कैसे वेरीफाई करेंगे? बाय यूजिंग ए ट्रूथ टेबल। देखिए A, B, here we have a column of A naught, this is B naught, this is B naught, A और B, this is A और B naught, this is A naught and this is B naught, A naught and B naught। दो इनपुट्स हैं, चार तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, 0 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। इस केस में A naught होगा 1, B naught is also 1। In this case A naught is 1, A naught is 0, B naught is 1। Here A naught is 1, B naught is 0 and this is both are 0 0। So A और B will be 0 1 1 1। कोई भी इनपुट यदि वन स्टेट में है तो और गेट का आउटपुट हमारा वन स्टेट में होगा। सो दिस इज 1 1 एंड 1। सो A और B नॉट, नॉट ऑफ A और B विल बी 1 0 0 0। उल्टा होगा किसका? A और B का। तो जहाँ 0 है A और B वहाँ 1 होगा, और जहाँ 1 है वहाँ पर ये 0 होगा। अब देखिए A नॉट एंड B नॉट, A नॉट एंड B नॉट, फ्रॉम हियर this is 1, A naught and B naught, this is 0, A naught B naught will be 0 and 0 0, because A naught and B naught are both 0, so this is 0। लास्ट टू कॉलम देखिए, A और B का नॉट is equal to A naught and B naught। दिस इज योर डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। देखिए दोनों आइडेंटिकल हैं, A और B का नॉट 1 है तो A नॉट एंड B नॉट भी 1 है। A और B का नॉट 0 है तो A नॉट एंड B नॉट भी 0 है। सो दिस इज हाउ वी प्रूव डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। लास्ट दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं जो डी मॉर्गन्स के फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करता है। अब देखिए
ए और बी नॉट, ये कैसे निकलेगा? ए और बी यहाँ आया आपका, और गेट है, उसको हमने इन्वर्ट कर दिया उसका आउटपुट को, तो ये मिला आपको ए और बी नॉट। ये होना चाहिए ए नॉट एंड बी नॉट के बराबर है ये। तो ए नॉट कैसे आएगा? ए को इन्वर्ट कर दिया तो ए नॉट आया, बी को इन्वर्ट किया बी नॉट मिला। चाहिए हमको ए नॉट एंड बी नॉट, तो इसको हमने पास किया किससे? एंड गेट से। सो दिस इज ए नॉट एंड बी नॉट। अब ये देखिए, ये जो है और गेट के बाद नॉट है, मतलब दिस इज बेसिकली ये नॉर गेट। तो दिस इज योर नॉर गेट। ए और बी इनपुट दिए हैं तो मिल रहा है हमको ए और बी नॉट। यहाँ देखिए एंड गेट में ए नॉट जा रहा है, दूसरा इनपुट है इसके इनपुट में बी नॉट, मतलब ए इज इन्वर्टेड बिफोर बीइंग फेड टू द इनपुट ऑफ एन एंड गेट। सिमिलरली इनपुट बी इज इन्वर्टेड बिफोर बीइंग फेड टू द इनपुट ऑफ एन एंड गेट। तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? बबल दे दिया यहाँ पर, और ये हो गया आपका एंड गेट। इसको हम बोलते हैं बबल्ड और एंड गेट। दिस इज बबल्ड एंड गेट। तो क्या निकलता है इससे हमारा कंक्लूजन? नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट। दिस विल बी यूज्ड इन डिजाइनिंग XOR गेट एंड XNOR गेट। याद रखिएगा, नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट। दूसरा थ्योरम क्या है? ए एंड बी का नॉट, नॉट ऑफ ए एंड बी इज ए नॉट और बी नॉट। कैसे वेरीफाई करेंगे? बाय यूजिंग ए ट्रूथ टेबल। डिफाइन कैसे करेंगे? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। दो वेरिएबल अगर ए और बी हैं तो ए एंड बी का नॉट इज ए नॉट और बी नॉट। ध्यान देने की जरूरत क्या है? एंड था वो कन्वर्ट हो गया है और में, और फर्स्ट थ्योरम में और था कन्वर्ट हो गया है एंड में। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रूथ टेबल। दो वेरिएबल्स हैं, इस चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमको दिखाना है, प्रूफ करना है क्या? ए एंड बी का नॉट। तो एक कॉलम हमको बनाना होगा ए एंड बी का नॉट, दूसरा कॉलम बनाना होगा ए नॉट एंड बी नॉट। तो देखिए ए और एंड बी ये चार कॉम्बिनेशन है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। चाहिए हमको ए एंड बी का नॉट, तो ए एंड बी निकालना होगा। तो ए एंड बी यहाँ लिख लिया इस कॉलम में हमने। यहाँ है ए नॉट एंड बी नॉट, तो ए नॉट एंड बी नॉट को भी निकालना होगा अलग अलग। इसको निकाल लिया है और यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए सबका। आप देख रहे हैं कि ए एंड बी का नॉट इज इक्वल टू ए नॉट एंड बी नॉट इन all the cases. So this proves our De Morgan's second theorem. सेकेंड थ्योरम के अनुसार ए एंड बी का नॉट कैसे निकलेगा? ये निकलेगा एंड गेट हुआ, एंड गेट के आउटपुट को हमने इन्वर्ट कर दिया, सो वी गेट ए एंड बी नॉट। दिखाना क्या है? इज इक्वल टू ए नॉट और बी नॉट। सो इनपुट ए इज इन्वर्टेड before being fed to the input of an OR gate. Similarly, the input B is inverted before being fed to the input of an OR gate. तो यहाँ हुआ A नॉट, ये हुआ B नॉट, दोनों इनपुट हो गए OR गेट के, आउटपुट क्या होगा? A नॉट और B नॉट। ये आपका ये हुआ NAND गेट, AND गेट के इनपुट को इन्वर्ट किया, आउटपुट को इन्वर्ट किया, ये हो गया आपका NAND गेट। सो NAND गेट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये जो नॉट गेट था उसके बदले हमने यहाँ दे दिया है बबल। इसका मतलब ये है कि ए इनपुट इसमें फीड करने के पहले दिस इज बीइंग इन्वर्टेड। सिमिलरली बी इनपुट को और गेट में फीड करने के पहले इसको इन्वर्ट किया गया है। सो दिस इज नोन एज योर बबल्ड और गेट। सो फ्रॉम हियर इट फॉलोज दैट NAND गेट is equal to
bubbled OR gate. ओके, नाउ अब आइए एक्सक्लूसिव OR गेट. The output of a two input exclusive OR gate assumes the one state if only one of its inputs assumes the one state. दो इनपुट XOR गेट है, उसका आउटपुट वन स्टेट में होगा यदि सिर्फ एक ही इनपुट वन स्टेट में हो. कैसे लिखते हैं इसको? y इक्वल टू ए, प्लस का साइन देके उसको सर्कल के अंदर लिखते हैं. ए पढ़ते हैं ए एक्सक्लूसिव बी, एंड दिस इज इक्वल टू ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए और बी इंटू ए नॉट और बी नॉट. You can expand this bracket and see that this is actually equal to A naught B plus AB naught. This is the symbol of a two input XOR gate. OR gate है, यहाँ पर एक और लाइन दे दिया गया है. A इनपुट है, B इनपुट है, एंड दिस इज Y इज आउटपुट. आउटपुट इज A एक्सक्लूसिव B. क्या ट्रूथ टेबल होगा? दो इनपुट हैं A एंड B, so we will have four different combinations of the inputs. They are 0 0, 1 0, 0 1 and 1 1. तो जब एक ही इनपुट वन स्टेट में होगा तो आउटपुट हमारा वन होगा. तो देखिए दोनों हमारा वन जीरो स्टेट में है, आउटपुट जीरो है. यहाँ दोनों वन स्टेट में है, फिर भी आउटपुट हमारा जीरो है. इस सेकेंड रो में देखिए एक इनपुट वन स्टेट में है, तो दिस इज आउटपुट इज वन. थर्ड रो में भी देखिए एक इनपुट हमारा वन स्टेट में है, तो आउटपुट इज वन. दिस सेकेंड रो का जो आउटपुट है ये किसको कन्फर्म करता है? ए बी नॉट. ए हमारा वन है, बी जीरो है. बी जीरो का मतलब हो गया बी नॉट वन. सो दिस करस्पॉन्ड्स टू ए बी नॉट. सिमिलरली इन द थर्ड रो ए इज जीरो, दैट मीन्स ए नॉट इज वन. ए नॉट इज वन एंड बी इज ऑलरेडी वन, सो दिस करस्पॉन्ड्स टू ए नॉट बी. आउटपुट क्या होगा? y इक्वल्स ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी. कोई भी इनपुट हमारा वन स्टेट में है, यदि एक ही इनपुट, तो आउटपुट हमारा वन होगा. तो आउटपुट इज y इक्वल टू ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी. कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको? ए बी नॉट और ए नॉट बी. देखिए ए बी नॉट चाहिए हमको. ए इनपुट यहाँ से आया, अब बी इनपुट ये है, उसको एंड गेट में फीड करने से पहले हमने उसको इन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज बी नॉट. तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा? ए बी नॉट. एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी नॉट है, दिस इज ए बी नॉट. एक और चाहिए हमको ए नॉट बी. हमने ए को इन्वर्ट कर दिया, दिस इज ए नॉट, एंड दिस इज बी. दोनों को हमने दे दिया कहाँ? एंड गेट के इनपुट में. आउटपुट इज ए नॉट बी. अब ये है ए बी नॉट, ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट. अब ये दोनों जो आउटपुट हैं दोनों एंड गेट के, इसको हमने दे दिया है और गेट के इनपुट में. क्या होगा आउटपुट हमारा? ए बी नॉट और ए नॉट बी. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ रियलाइजिंग टू इनपुट XOR गेट. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हमने देखा था वो है y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए नॉट और बी नॉट. ये भी करस्पॉन्ड करता है टू इनपुट XOR गेट को. चाहिए हमको एक टर्म चाहिए ए और बी. तो देखिए हमारा OR गेट है, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, तो वी गेट हियर आउटपुट एज ए और बी. दूसरा चाहिए ए नॉट और बी नॉट. तो देखिए ए को इन्वर्ट कर दिया एंड गेट से, ये ए नॉट हुआ. बी को इन्वर्ट कर दिया नॉट गेट से, ये बी नॉट हुआ. और ए और बी नॉट चाहिए, क्या करेंगे? ये OR गेट लगा दिया यहाँ पर. आउटपुट क्या होगा? ए नॉट और बी नॉट. अब ए नॉट और बी नॉट एंड ए और बी दोनों का है एंड. यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को हमने
एंड गेट के इनपुट में दिया, आउटपुट क्या होगा, y इक्वल टू ए और बी एंड ए नॉट और बी नॉट. So these are the two different methods of realizing XOR gate. एक है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, लिखते हैं एक्सनॉर गेट. एक्सनॉर गेट का आउटपुट जो होगा सो एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट का उल्टा होगा. So the output of a two input XNOR gate assumes the one state if both of its inputs are in the same state. XOR में क्या था, दोनों इनपुट एक स्टेट में हैं आउटपुट 0 होगा. इसमें क्या है, दोनों इनपुट अगर सेम स्टेट में हैं आउटपुट 1 होगा. तो मैथमेटिक्स क्या है, ये ए एक्सक्लूसिव और का नॉट है. सो आई राइट इट एज ए एक्सक्लूसिव बी का नॉट. ऊपर में हमने दे दिया है नॉट का सिंबल, तो ये हो गया आपका ए एक्सक्लूसिव और ऊपर में नॉट. इसको लिखते हैं ए, एंड का सिंबल है डॉट, इसको सर्किल के अंदर दे दिया है. So this stands for XNOR. So A XNOR B. This is A or B into A naught और B naught. इसका ये नॉट है. By De Morgan's theorem, this is written as A or B naught and A naught और B naught का naught. Expand it by De Morgan's theorem. The first term gives you A naught and B naught, and second term gives you A naught, A double naught into B double naught. So this is A naught and B naught or A and B. How to realize this? You see here how this can be realized. Exclusive OR तो ये हो गया आपका सिंबल. The symbol of exclusive OR is this. A B जो इनपुट हैं तो ये हो गया आउटपुट आपका A एक्सक्लूसिव B. इसको इन्वर्ट करना है. व्हाट यू यूज इन नॉट गेट. नॉट गेट लगा दिया यहाँ, तो ये क्या हो गया, इसका नॉट निकलेगा. सिंबल क्या है, A XNOR B. इसको सिंबल कैसे देते हैं इसका, ये हो गया XOR इन्वर्शन है, तो क्या करेंगे, XOR गेट के आउटपुट में एक बबल दे देते हैं. So this represents your XNOR gate. So A और B दोनों को इनपुट दे रहे हैं किसमें, XNOR गेट में. आउटपुट क्या मिलेगा, A एक्सक्लूसिव NOR. So this is the symbol of two input XNOR gate. ये हुई गेट्स की बात. हम पहले बता चुके हैं NOR गेट और NAND गेट, दोनों गेट जो हैं वो कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट्स, क्योंकि NOR गेट को इस्तेमाल करके उसका यूज़ करके हम डिफरेंट गेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं. उसी तरीके से NAND गेट को यूज़ करके हम सारे गेट को ऑब्टेन कर सकते हैं. इसलिए NOR गेट और NAND गेट दोनों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स. आइए देखते हैं कि हाउ दिस कैन बी डन. रियलाइजेशन ऑफ डिफरेंट गेट्स यूजिंग ओनली NOR गेट. सिर्फ NOR गेट का यूज़ करके हम डिफरेंट गेट को डिजाइन कर रहे हैं. देखिए पहला है NOT गेट. ए NOR गेट में दो इनपुट होंगे कम से कम. तो देखिए एक ही इनपुट हमारे पास ए है, तो इसी को दोनों इनपुट में हमने डाल दिया. ठीक है, ये क्या मिला, ए और ए का नॉट. सो दिस इज ए नॉट. ये हो गया आपका नॉट गेट. दूसरा है OR गेट. दो इनपुट हैं, NOR गेट के दो इनपुट हैं, क्या मिला, ए और बी का नॉट. ये भी हमारा NOR गेट है और इनपुट हमारे पास एक ही है, ए और बी का नॉट. तो इसी इनपुट को हम दोनों इनपुट में डालते हैं नेक्स्ट NOR गेट के. व्हाट यू गेट, इनपुट का नॉट मिलेगा. इनपुट कितना है, ए और बी का नॉट. सो दिस इज ए और बी डबल नॉट. तो डबल इन्वर्शन हो गया, ये तो कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल टू ए और बी.
थर्ड इज योर एंड गेट। ए को दीजिए नॉर गेट में, एक ही इनपुट हमारे पास यहाँ पर है, तो दोनों इनपुट में इसी को डालिए। व्हाट यू गेट हियर, ए नॉट। सिमिलरली दूसरे नॉर गेट में डालिए बी इनपुट को, दोनों इनपुट में, यू गेट हियर बी नॉट। थर्ड नॉर गेट में ए नॉट और बी नॉट को डालिए, सो दिस इज ए नॉट और बी नॉट का होल नॉट, नॉट से निकल रहा है। बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम दिस इज ए डबल नॉट and B double naught. Since double inversion cancels, A double naught will be equal to A and B double naught will be equal to B. So the output is A and B. This is how we realize the AND gate. NAND gate में क्या करना होगा, AND gate को आउटपुट को उलट देना है, इन्वर्ट कर देना है। तो यही सारे चीज जो हैं, ये सारे चीज जो हैं, सो यहाँ पर आएंगे, वही चीज है यहाँ पर देखिए, और सिर्फ क्या किए हैं, इसको हम लोग इन्वर्ट लगा दिए हैं नॉट गेट। तो ये हो गया आपका ए एंड बी का नॉट। नेक्स्ट इज एक्सनॉर एंड एक्सऑर गेट। देखिए दो इनपुट है ए बी, दोनों इनपुट से हमने लगा दिया एक नॉर गेट में। क्या होगा आउटपुट इसका, ए और बी का नॉट। सेकेंड नॉर गेट में इसको डालिए इनपुट में, ए और बी नॉट, और एक इनपुट डालिए आप ए। एक और नॉर गेट में इनपुट डालिए बी और दूसरा इनपुट होगा ए और बी का नॉट। So these two inputs gives you output as A और B नॉट का होल नॉट। ये नॉर गेट है, और का उल्टा, और क्या हो गया, ए और बी नॉट, इसका उल्टा करना है, तो ये हो गया इसका नॉट। एंड दिस इज इक्वल टू ए नॉट बी। हाउ दिस इज पॉसिबल, ये देखिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ए और नॉट ऑफ ए और बी whole knot. By De Morgan's theorem, this is A naught and A और B का double knot. This is A naught into और A naught and A और B ब्रैकेट ओपन कीजिए, this is A naught A और A naught B. A naught A is 0, so this is simply A naught B. In the same way, जो lower NOR gate है यहाँ, इसका आउटपुट है बी और बी, ए और बी का नॉट का होल नॉट, सो दिस विल बी इक्वल टू ए बी नॉट। अब इन दोनों आउटपुट को ए नॉट बी और ए बी नॉट को दीजिए एक और नॉर गेट में, तो क्या होगा, ए नॉट बी और ए बी नॉट का नॉट। तो ए नॉट बी और ए बी नॉट, दिस इज योर एक्स और गेट, उसका नॉट हो गया, तो क्या हो गया, ये हो गया एक्स नॉर गेट। इसका सिंबल क्या है, डॉट, उसके चारों ओर सर्कल, या सर्कल के बीच में डॉट, तो दिस इज एक्स नॉर गेट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, तो ये हुआ आपका एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट को एक बार और इन्वर्ट कर दें अगर हम, तो मिल जाएगा एक्स और गेट। एक और लगा दिया नॉर गेट हमने यहाँ पर, देखिए ए नॉट बी और ए बी नॉट का एक इन्वर्शन था, यहाँ हो गया डबल इन्वर्शन, सो दिस इज ए नॉट बी और ए बी नॉट, सो दिस इज योर एक्सऑर गेट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सो एक्सऑर गेट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक लेके ये हुआ आपका एक्सनॉर गेट। पहले एक्सनॉर बनेगा, उसके बाद एक्सॉर गेट बनेगा। अब देखिए डिफरेंट गेट्स यूजिंग ओनली नैंड गेट। पहला देखिए नॉट गेट है, ए इनपुट एक है और नैंड में कम से कम दो इनपुट होंगे, तो दोनों इनपुट्स में हम ए को ही देते हैं। सो व्हाट वी गेट हियर, ए नॉट।
एंड गेट, दो इनपुट हैं, एक इनपुट में दिया हमने ए, दूसरे में दिया बी, सो दिस इज योर ए एंड बी नॉट। चाहिए हमको एंड गेट, तो इसको एक और इन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट कर देंगे तो ये हो गया ए एंड बी का डबल नॉट, एंड दिस इज सिंपली ए एंड बी। ये हो गया एंड गेट। और गेट देखिए कैसे होगा, ए को इन्वर्ट किया नॉट गेट से, ये हो गया ए नॉट, बी को इन्वर्ट किया नॉट गेट से, ये हो गया बी नॉट। अब ए नॉट और बी नॉट को हमने एक नैंड गेट के इनपुट में दिया, तो ये क्या होगा, ए नॉट एंड बी नॉट का होल नॉट। बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम दिस इज ए नॉट और बी नॉट, ए नॉट, ए डबल नॉट and B double knot. Since double inversion cancels, A double knot is A and B double knot is B. So this is A or B. This is how we realize an OR gate using only NAND gate. Now NOR gate. NOR gate कैसे बनेगा, OR गेट के आउटपुट को इन्वर्ट कर देना है। तो देखिए ये आपका है OR गेट, वही चीज़ यहाँ भी है, ये देख रहे हैं, वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ तक ये OR गेट है। एक और आगे NAND गेट लगा के हम इसको इन्वर्ट करते हैं, सो वी गेट योर NOR गेट। अब लास्ट दो हैं XNOR एंड XOR। देखिए एक इनपुट A है, दूसरा इनपुट हमारा B है, ये NAND गेट यहाँ पर है, A को दिया इसके इनपुट में, B को दिया इसके इनपुट में, व्हाट यू गेट, A एंड B नॉट। A एंड B नॉट और A दोनों को दिया है हमने एक दूसरे NAND गेट के इनपुट में, क्या मिलेगा आउटपुट, A एंड B नॉट का होल नॉट, एंड दिस इज A नॉट और B। कैसे होगा ये दिखाएंगे अभी। थर्ड NAND गेट है, उसमें एक इनपुट P है हमारा और एक इनपुट है A एंड B का नॉट, सो द आउटपुट विल बी B एंड A एंड B नॉट का होल नॉट, एंड दिस इज B नॉट और A। कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ से आप इसको जो हम लिख रहे हैं दिस इज A नॉट और B, कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए A एंड B नॉट का होल नॉट, बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम दिस इज A नॉट और A एंड B डबल नॉट, तो दिस इज ए डबल नॉट हो गया, मतलब डबल इन्वर्शन कैंसिल्स, सो दिस इज सिंपली A नॉट और AB। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ I can write it as A naught or A and A naught or B. A naught or A is 1. So this is 1 here. This is A naught or B. So this is simply A naught or B. So this is here. Similarly, we have B and A and B naught ka whole naught. Similarly, we can show that this is simply equal to B naught or A. This is here. अब इन दोनों इनपुट्स को A नॉट B, A नॉट और B एंड B नॉट और A को हम दे रहे हैं एक दूसरे NAND गेट के इनपुट में, तो क्या मिल रहा है, A नॉट और B एंड B नॉट और A का नॉट, तो दिस इज इक्वल टू AB नॉट प्लस A नॉट B, दिस इज योर AB नॉट एंड A नॉट B। ये कैसे हुआ ये अभी दिखाएंगे हम आपको, दिस आई विल शो यू जस्ट नाउ। देखिए A नॉट और B and B नॉट और A whole knot, this is here by De Morgan's theorem, this is A नॉट और B का whole knot,
और B naught और A का whole naught. So the first term gives you by De Morgan's theorem A double naught and B naught, or this term gives you B double naught and A naught. Since double inversion cancels, A double naught is A, so this is AB naught and this is A naught B. So this is nothing but your XOR gate. So we have XOR gate from here to here. This is XOR gate. XOR गेट के आउटपुट को इन्वर्ट कर दें तो मिलेगा XNOR गेट. तो एक इन्वर्टर लगा दिया यहाँ पर हमने, एक नॉट गेट लगा दिया यूजिंग ए NAND गेट. व्हाट वी गेट हियर XNOR गेट. दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर. Okay, so this is all about your gates, how to realize them, how using the universal gates all the different gates can be designed. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.